Hello everybody, welcome to the Next Level Academy. So, we are starting this new series, Indian Economy through MCQs for the UPSC and the other state PCs exams. And this is brought to you by me, Ashwini Agrawal. And this is our lecture first, which is the national income, one of the most important chapter of our Indian economy. So, let's begin. So here comes the first question. What does the national economy primarily measures? यानी कि जो राष्ट्रीय आय है उसके मुख्य मापक क्या हैं? ऑप्शन ए टोटल मनी सप्लाई, ऑप्शन बी टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री, ऑप्शन सी टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ऑप्शन डी टोटल इनकम ऑफ रिचेस्ट इंडिविजुअल। यानी कि जो हमारे कंट्री की टोटल मनी सप्लाई है वो, या जो हमारे देश में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं वो, या फिर सरकार का टोटल एक्सपेंडिचर, या जो अमीर व्यक्ति है उसकी टोटल इनकम। नाउ इफ यू एनालाइज these options, you will realize that option A, which is the total money supply, is an instrument of RBI to calculate the money supply in the country, how much money is in the market. Option B will come later. Option C is the total government expenditure. You might have studied this in your GDP that we have three methods, and one of the method is expenditure method. In expenditure method, we calculate the government expenditure, but that is not enough to calculate the entire GDP, right? So this is also not an option. Option 3, third comes the total income of the richest individual. In another method of the calculation of GDP, we study income method. But can the income of richest individuals be the only factor of calculating GDP? No. So the here only option left is the option B, total value of goods and services produced in a country. Option B is the right answer. Now there is one more thing, the total value of goods and services produced in a country, but in how much time? In a year, in a financial year. Total value of goods and services produced in a country in a financial year is a primary measure of calculating the national income or the GDP. Question second is, which of the following is not included in the calculation of gross domestic product? यानी कि जो हमारी GDP होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इनमें से उसमें किसको नहीं जोड़ा जाता है? गवर्नमेंट स्पेंडिंग, बिजनेस इन्वेस्टमेंट, इंपोर्ट्स या एक्सपोर्ट्स। जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखा कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग या फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को हम जीडीपी में जोड़ते हैं इन द एक्सपेंडिचर मेथड, तो ये तो ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन बी कहता है कि बिजनेस इन्वेस्टमेंट। जब हम एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ते हैं तो उसमें दो तरह के एक्सपेंडिचर हम पढ़ते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो बिजनेस इन्वेस्टमेंट भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है जो कि जीडीपी में काउंट होता है। इसके अलावा ऑप्शन सी एंड डी, यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, ये आप यू कैन से कॉल इट अ ट्रिक विच इज़ नॉट मच हेल्पफुल इन यूपीएससी बट कैन बी हेल्पफुल इन स्टेट पीसीएस और अदर एग्जामिनेशन. What you will realize that the most of the question who have two contradictory options, one of them is true, right? So option C and D, one of them is true. Now which one is true? Now here we are talking about the gross domestic product. Domestic means in the boundaries of that nation, right? In the domestic boundaries, right? The domestic boundary of India. Any production which is held in the domestic boundary of the country is calculated in the gross domestic product. Now, are imports produced in the domestic boundary of the country? No. Are exports produced in the domestic boundary of the country? Yes. So the option here is C. Imports are not included in the calculation of gross domestic product. If
if you want to read the explanation, imports are subtracted in the calculation of GDP because they are goods and services produced outside the country. Moving on to the next question. What does GDP at constant price measures? GDP constant price में क्या measure करती है? Nominal GDP adjusted for inflation, the value of goods and services at current market price, total economic output without adjustment of inflation, the total output at fixed prices of a base year. Here the adjusted means minus. For example, let's say India's GDP growth is 8.3% in 2023-2024 financial year. Now, in the same year, the inflation rate was 4.3. Now, we will subtract the inflation rate from the GDP growth rate, then we will get the real GDP. So that is the meaning of adjusted. The value of goods and services at current market price. You know the market price in other. There's one more component with the market price. Let me know in the comment section. This is a task for you. Now, what is the right answer here? The right answer here is option D, total output at fixed prices of a base year. क्योंकि ये क्वेश्चन था कि जीडीपी को कांस्टेंट प्राइस में मेजर किस बेस पे किया जाता है। तो जो हमारी जीडीपी है, मान लीजिए हमने कहा कि जीडीपी में 8.3% की ग्रोथ हुई है, या फिर जीडीपी में 20% की ग्रोथ हुई है, राइट, या फिर जीडीपी में 22% का घाटा हुआ जो हमारे कोविड पीरियड में हुआ था। तो वो हम किस बेस पे कह रहे हैं? एक बेस ये हम हमारी गवर्नमेंट है वो डिसाइड करती कि हम 2011, 2015, 2016 इसमें से एक साल को हम बेस ईयर मानेंगे और उस साल के बेसिस पर हमारे करंट ईयर में जो डिफरेंस आया है जीडीपी की ग्रोथ है और जीडीपी ग्रोथ कैलकुलेट करते हैं। Fourth question is, which method is used to calculate GDP by adding up all the expenditure? I told you in the very first question, this is one of the method of calculation of GDP, and here we are talking about the adding all the expenditure. It is clearly the option C, expenditure method, because in income method we calculate all the incomes. In production we include the total goods and services produced in a country in a financial year. Expenditure method is in front of you, adding up all the expenditure, and value added method is we will talk about later. And the expenditure method calculates GDP by summing up all the expenditure of final goods and services. Fifth question is, what is the formula for calculating net national income? Now, here we are talking about the net national income, not net domestic income or the production. Now, if you want to go for the correct option, first look at the options which are similar to the question, right? So here option A and B are talking about the GDP, which is the gross domestic product, and option C and D are talking about the gross national product, which is somewhat similar to your net national income. So now what happens is if you want to calculate the net national income from the gross national income or the production, what you have to do is that you have to minus the depreciation, then you will get the net national income or the net national production. Now, why we need to minus the depreciation? For example, let us say you made a profit of 1,000 rupees from a machine, right? Now, while you use that machine in production, that machine must have gone through some wear and tear. Now, for that wear and tear, you have to get it service, and you have to pay 100 rupees for the service.
Now that amount of 100 rupees is the depreciation over your gross national production or the gross domestic production. In both of the case, the depreciation is the same. Now, if you will subtract the depreciation from the gross national product, you will get the net national product or the net national income. Right? So option C is the correct answer. GNP minus depreciation. Net national income is calculated by subtracting depreciation from the gross national product. Moving further, which of the following is included in the gross national product but not in GDP? यानी कि जो हमारी GNP है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, उसमें ऐसी क्या चीज़ इंक्लूड की जाती है जो हम GDP में नहीं करते? इमेजिन वन थिंग, लेट अस से भारत की कंपनी है महिंद्रा. महिंद्रा की ब्रांच इंडिया में भी है और ऑस्ट्रेलिया में भी है. वो कंपनी तो इंडिया की है. अब जो वो ऑस्ट्रेलिया में अर्निंग कर रही होगी, तो वो अर्निंग का जो प्रॉफिट है वो महिंद्रा साहब इंडिया में भी लेकर आ रहे होंगे, क्योंकि भारत के वो रेजिडेंट हैं, सिटीजन है और भारत में ही उसको खर्च कर रहे होंगे. तो वो हो गया आपका नेशनल, क्योंकि वो आपका इनकम ऑस्ट्रेलिया से, जो ऑस्ट्रेलिया के लोग हैं वो खर्च कर रहे हैं, वहाँ पर जो गाड़ियाँ खरीदते हैं वहाँ से वो भारत में आ रही है और वो आपकी नेशनल प्रोडक्शन के ऊपर है, क्योंकि वो भारत की डोमेस्टिक बाउंड्री से बाहर आपका प्रोडक्शन हुआ है और वो जो कंपनी है वो भारत की ही है. इसी तरह से कोई भारत की एम्बेसी होती है और वो जो वीज़ा फीस चार्ज करती है वो भी आपका GNP में आएगा, क्योंकि वो डोमेस्टिक बाउंड्री से बाहर है लेकिन भारत का ही एक हिस्सा है, इसलिए जो उससे अर्निंग हुई वो भारत के ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में आएगी. यानी कि इसमें से ऑप्शन ए तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो बिल्कुल भी नहीं, बी इनकम फ्रॉम अब्रॉड, सी पर्सनल कंजप्शन, डी बिजनेस इन्वेस्टमेंट. ऑप्शन बी इज करेक्ट. एज आई टोल्ड यू, इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने बताया कि महिंद्रा साहब की जो ऑस्ट्रेलिया में ब्रांच है वहाँ से जो इनकम होगी भारत की ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में इंक्लूड होगी, लेकिन वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन में नहीं होगी क्योंकि वो भारत से बाहर है, भारत की डोमेस्टिक बाउंड्री से बाहर है. इस वजह से so the GNP includes income earned by resident of a country from abroad, whereas GDP includes income generated within the country. The concept of real GDP adjusts for, I told you answer of this question already. Now you comment this the right answer of this question. Moving further, option B is the correct answer. Inflation, I already told you. When we subtract the inflation rate of a financial year from the GDP growth rate of the same financial year, then we get the real GDP growth rate. With the real GDP adjust for the inflation to provide a measure of economy's true growth. क्योंकि तभी हमें पता चलेगा कि हमारी GDP प्रोडक्शन तो हमने देख लिया कि 8.3% का हो रहा है, लेकिन जब हम कहेंगे कि हाँ इन्फ्लेशन भी इसके साथ साथ बढ़ा है, 4.3% का इन्फ्लेशन अगर बढ़ा है, तो उसमें से जो हमारा 4% बचा उसका हमारा ग्रोथ हुआ है, 4% का ग्रोथ हुआ है. दैट इज द रियल GDP. व्हाट डज द टर्म पर कैपिटा इनकम रेफर्स टू? वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी बेसिक 11th-12th की NCERT का क्वेश्चन है. सो the first option is total national income divided by the number of residents. I'm not saying that, not saying citizens, not saying any foreigner, I'm saying residents. B, total national income divided by number of workers, total income of top 1% divided by the population, or total income from export divided by the population. Now, here option E is the correct answer. Total national income, total GDP जो है उसकी, उसको हमारे देश में नंबर ऑफ रेजिडेंट, नॉट द नंबर ऑफ सिटीजन्स, आई एम सेइंग द नंबर ऑफ रेजिडेंट्स. हियर इट इज नॉट द सिटीजन, दिस इज इट शुड बी नंबर ऑफ रेजिडेंट अर्न्ड बाय रेजिडेंट ऑफ कंट्री. यानी कि जो इंसान भारत में ही अपनी इनकम अर्न कर रहा है और भारत में ही उसको खर्च कर रहा है.
Look, for UPSC or the PCS examination, they won't ask you, but who is a resident of the country? The person who resides more than 180 days in our country is a resident of the country, despite his citizenship status. He is a resident of the country. Condition is that he or she must be earning and spending in India for the prescribed age. Right? So that person is considered as a resident. Moving further, question number 9 is which of the following is a limitation of GDP as a measure of economic well-being? यानी कि इनमें से हम अपनी इकोनॉमी को सही दिखाते हैं जीडीपी में क्या चीज़ इंक्लूड नहीं करती, ताकि हमारी इकोनॉमी का जो एक्चुअल पार्ट है वो शो हो, जो जो अनएथिकल चीज़ है या फिर जो इनफॉर्मल चीज़ है वो इसमें इंक्लूड ना की जाए. तो इट एक्सक्लूड्स इनफॉर्मल इकोनॉमी, इट इंक्लूड्स इलीगल ट्रांजेक्शन्स, इंक्लूड्स ट्रांसफर पेमेंट्स और एक्सक्लूड्स गवर्नमेंट. जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर तो इसमें इंक्लूड होता ही है, ट्रांसफ़र पेमेंट भी इसमें इंक्लूड होगा या नहीं होगा, ट्रांसफ़र पेमेंट इसमें इंक्लूड होगा या नहीं होगा, ये आप मुझे इसमें कमेंट सेक्शन में बताइए. इलीगल ट्रांजेक्शन तो इसमें इंक्लूड कुछ केसेस में इलीगल ट्रांजेक्शन. देखिए इलीगल ट्रांजेक्शन का मतलब ये है कि जैसे कि आपके अकाउंट में पैसा है बट लेकिन आपने उसको एक्सपेंडिचर तो उसका कर दिया, आपने उस अमाउंट को खर्च तो कर दिया ना, या फिर मान लीजिए कि किसी फ्रेंड ने आपको पैसे भेजे या जिसको हेल्प एंड मिली, वो इलीगल या लीगल में आता है या नहीं आता, लेकिन ट्रांजेक्शन आपके पास आया उसमें आपको इनकम का सोर्स भी होगा या फिर आपने उसमें एक्सपेंडिचर किया होगा, तो वो किसी न किसी मेथड में या फिर एक्सपेंडिचर मेथड में कैलकुलेट हो जाएगा. बट द राइट आंसर इज एक्सक्लूड्स इनफॉर्मल इकोनॉमी. GDP does account for economic activities that occur outside the formal market, such as informal and market transaction. क्योंकि अब यहाँ पर हम ब्लैक मार्केट ट्रांजेक्शन क्यों इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसमें हमारे पास पैसा है तो उसको भी हम एक्सपेंडिचर कर तो रहे ही हैं. देखो आपके पास ब्लैक मार्केट से जो पैसा आता है वो किसी के पास भी आता है, दैट इज ब्लैक मनी. सिंपल ब्लैक जो आपने पैसा ब्लैक मार्केट से मार्केट सिंपल दैट इज ब्लैक मनी, एंड दैट ब्लैक मनी इज नॉट is not used or spent in that country, right? For example, if someone is having let's say 100 crore rupees of black money, they won't spend it in India, because if they will spend that money in India, they will be caught by ED or the income tax department, right? What they do, they will open their account in Swiss bank, or they will go to Cuba and countries like that, in Panama and where the casinos are very big in Costa Rica. These countries in the western, this Central American region, they are quite famous for the casinos. They will go there, they will spend their money there, right? So that is not included in GDP. But the transaction, let us say illegal transaction आपके पास हो गया, illegal transaction, आपने कोई चोरी का फ़ोन है उसको लिया और आपने बेच दिया, उसका पैसा आपके पास आया, तो आप उसको खर्च करने आप किसी देश में नहीं जाओ. दैट इज व्हाट इज द टर्म डिस्पोजेबल इनकम रिप्रेजेंट्स. सो द क्वेश्चन इज आपका डिस्पोजेबल इनकम किस में होता है? डिस्पोजेबल इनकम वो होता है जिसको आप खर्च कर सकते हैं. आपके पास 100 रुपये हैं तो आपको उसमें से किसी को देना नहीं है, आप उसको डायरेक्टली जाकर खर्च कर सकते हैं. और इनडिस्पोजेबल इनकम वो होता है कि आप उसको डायरेक्टली नहीं खर्च कर सकते, आपको पहले उसमें से जो शेयर है जिसको आपको देना है वो देना पड़ेगा. यानी कि फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका इनकम टैक्स है, 10 लाख रुपये की इनकम अपने पास
लेकिन गवर्नमेंट उसमें आपको 10% 20% आपका टैक्स ले रही, तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। उसके बाद उसको डिस्पोजेबल इनकम में काउंट करोगे तब आप उसको यूज़ कर सकते हो एक्चुअली। अब आप कहोगे कि नहीं, हम तो बिना इनकम हम इनकम टैक्स नहीं भरते, हम उसको ऐसे ही यूज़ कर लेते हैं, तो संभल जाओ, खतरे में होगा। क्योंकि इनकम टैक्स पे करने के बाद ही आप उसको एक्चुअली लीगली तरीके से आप उसको तभी यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज यू कांट यूज दैट इनकम। सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट। इनकम आफ्टर पेइंग टैक्सेस इज द डिस्पोजेबल इनकम। So disposable income is the amount of money left after taxes have been deducted. Question 11 is, what does the term net domestic product NDP refers to? Earlier in the question I told you the net national product or the net national income. This is a similar question, but the word national and domestic have been interchanged. So if you want to calculate the net domestic product, you will have to first look at for the gross domestic product, and then now you need to analyze how you can go from gross to net. So you will see that you will have to minus depreciation from the gross domestic product to get the net domestic production for the product of the income. Net domestic product, net domestic income, similar to this. Right, NDP is calculated by subtracting depreciation from GDP, reflecting the value of goods and services after accounting for capital gain and tear. इसलिए मैंने कहा था कि आपने 1000 रुपये अपनी मशीन से प्रोडक्शन किया, आपने इनकम उससे की, लेकिन उस मशीन ने जो काम किया उस वजह से उसमें आपका गियर एंड टियर हुआ, आपको उसकी सर्विस करानी पड़ी, और सर्विस कराने में आपके 100 रुपये खर्च हो गए। तो 100 रुपये खर्च होने के बाद जो आपका नेट प्रॉफिट बचा उस मशीन से वो 900 रुपये, दैट इज लाइक योर NDP, राइट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। Which component is not a part of expenditure close to GDP calculation? एक्सपेंडिचर अप्रोच, एक्सपेंडिचर मेथड मैंने अभी बताया था कि इनमें से किन चीज़ों को इसमें आप इंक्लूड नहीं करेंगे। कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड नेट एक्सपेंड। कंजप्शन मैंने बताया था कि आप एक्सपेंडिचर मेथड में जब काउंट करते हैं तो दो कंपोनेंट वहाँ मेन होते ही हैं, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और उसके साथ साथ हम गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को भी एक्सपेंडिचर मेथड में काउंट करते हैं, पर हम उसमें नेट एक्सपोर्ट को काउंट नहीं करते। सो नेट एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स, यानी कि आपने मान लीजिए 1 लाख रुपये का सामान एक्सपोर्ट करा किसी देश में, और उसी देश से आपने 50,000 रुपये का सामान इम्पोर्ट भी कर दिया, तो उसके बाद जो आपको 50,000 रुपये बचे वो हुआ आपका नेट एक्सपोर्ट। दे आर इंक्लूडेड इन द एक्सपेंडिचर अप्रोच, दे आर नॉट, there is a typing mistake, they are not included in the expenditure approach, so this option is incorrect. The method of calculating GDP includes, now the income method of calculating GDP includes, अब आपका इनकम आप ये देखिए, आपको इन 3 ऑप्शन, ऑल ऑफ द तो एक अलग ही ऑप्शन हो गया, इन 3 ऑप्शन में से आपको किस में इनकम होती है? क्या वेजेस एंड सैलरीज इनकम का पार्ट है? हाँ है। क्या प्रॉफिट इनकम का पार्ट है? हाँ बिल्कुल है। क्या रेंट है आपका इनकम का पार्ट? आप मान लीजिए आपने अपने घर पे रूम है, आपने किसी को रेंट पे दे दिया, क्या आपको इससे इनकम हो रही है? हाँ हो रही है। या फिर आप खुद रेंट पे रहते हैं, जो आपका लैंडलॉर्ड है, क्या उसको इससे इनकम हो रही है? हाँ बिल्कुल हो रही है। तो ये सभी आपका इनकम मेथड में कैलकुलेट किए जा सकते हैं, यानी कि द इनकम मेथड सम्स अप ऑल इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूडिंग वेजेस, प्रॉफिट्स एंड रेंट। Now, what does real GDP growth rate indicate? Again, we have already done this question, just the question. Now, look, when you go to an examination, one question can be asked in 100 of forms, right? There are 100 ways to, there are many ways to ask one question, right? So, the question is saying, just
few words play dependent on that. So what does real GDP growth indicate? The percentage increase in nominal GDP. बिल्कुल नहीं. The percentage increase in real GDP adjusted for inflation. We will look back to it. The percentage change in population. ये तो है ही नहीं कहीं से भी. The change in government spending. ये भी नहीं. तो option B is the correct answer. The percentage increase in real GDP adjusted for inflation. वही 8.3%, 4.3% adjusted, 4% real GDP growth होना मैंने बताया था, वही है. Real GDP growth rate measures the rate of which the country's economy grows adjusted for inflation. यानी कि after deducting subtracting the inflation rate, जो आपका real GDP growth बचा वही आपका ये था. 15th is which of the following is a direct method of calculating national income. यानी कि इनमें से हम डायरेक्टली नेशनल इनकम किस चीज़ से कैलकुलेट कर सकते हैं. एडिंग अप ऑल द प्रोडक्शन, समिंग अप ऑल द एक्सपेंडिचर, एडिंग अप ऑल द इनकम्स और कैलकुलेटिंग द वैल्यू एडिंग. डायरेक्ट मेथड हमको अगर जानना है तो देयर इज अ सिंपल मेथड कि आपके देश में जितनी भी इनकम लोगों की हुई है उसको कैलकुलेट कर दीजिए. क्योंकि आप एक्सपेंडिचर मेथड पे जाएंगे तो आपको पहले इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर देखना पड़ेगा, फिर कंजप्शन एक्सपेंडिचर देखना पड़ेगा, फिर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर देखना पड़ेगा. तो दैट इज़ ऑल लॉट ऑफ क्योर्स. बट आप जब इनकम कैलकुलेट करेंगे तो सिंपल वे में भी आपका इनकम है सभी आपका रेजिडेंट्स के थ्रू गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू है वो सब चीज़ को आप कैलकुलेट कर देंगे तो आपका इनकम हो जाएगी. So the direct method of calculating national income involves summing up all sources of income earned in the economy. The term gross national product includes option A only domestic production. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नेशनल डोमेस्टिक की बात नहीं कर रहे. only domestic production, only net income from abroad, both domestic production net income from abroad. only domestic production माइनस डेप्रिसिएशन. तो ये ऑप्शन तो कहीं से भी नहीं है. अगर इसमें से हम माइनस डेप्रिसिएशन कर देते हैं तो यहाँ आपका नेट होना चाहिए था. तो ये तो है ही नहीं, तो एलिमिनेट ही करता हूँ. अब सिर्फ डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो और नेशनल की बात हो रही है, यानी कि पैसा बाहर से भी आ रहा है तो डोमेस्टिक तो है नहीं. बट सेकेंड ऑप्शन कह रहा है कि नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड से नहीं, क्योंकि सिर्फ बाहर से पैसा नहीं आ रहा, अंदर भी देश में पैसा बन रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, एक्सपेंडिचर हो. तो क्या वो होगा? नहीं. लेकिन डोमेस्टिक प्रोडक्शन प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड इन दोनों को काउंट करके तो हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को हासिल कर पाएंगे. यानी कि GNP includes the total value of goods and services produced domestically and the net income earned from the abroad. Now, what is net income earned from abroad or net income from let us say when I told you there is net export, this is the same thing. आपने 1 लाख रुपए का सामान एक्सपोर्ट किया ऑस्ट्रेलिया, बदले से आपने ऑस्ट्रेलिया से 50,000 रुपये का सामान इंपोर्ट कर लिया, तो आपको उसमें से कितनी इनकम हुई? उसने एक्सपोर्ट इंपोर्ट से आपको कितनी इनकम हुई? ये तो कहोगे नहीं कि आपने 1 लाख रुपये का सामान एक्सपोर्ट किया तो 1 लाख रुपये आपको हुआ नहीं, क्योंकि आपको 50,000 रुपये जो इंपोर्ट किया वो भी तो माइनस करना होगा. वो माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचा दैट इज योर नेट इनकम अर्न फ्रॉम इनकम. Which concept measures the value of goods and services produced in a country regardless of regardless of who owns the factors of production. यानी कि इनमें से कंट्री की जो गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू है उसको लिए कौन सा कंसेप्ट हम यूज़ करें जहाँ पर आपका ओनरशिप का इशू ही नहीं है, यानी कि कंपनी या फिर उसकी ओनरशिप किसी के भी पास हो, और वो हमारा मेजर कौन सा होता है. तो देखिए आपकी डोमेस्टिक बाउंड्री के बीच जैसे हमारे यहाँ इंडिया में बेंगलोर में एप्पल भी काम करती है, आपका नोएडा में सैमसंग भी काम करती है, बाकी चाइनीज़ कंपनियाँ भी हैं और अमेरिका की काफ़ी कंपनियाँ भी हैं जो
सा बना रही हैं, प्रोडक्शन तो देश के अंदर ही हो रहा है, ठीक है। जो वहाँ के वर्कर्स हैं वो वहाँ से अर्न कर रहे हैं, हमारी जो कंट्री है वहाँ पर रह रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इंक्लूड होगा रिगार्डलेस वो पहुँचता है। नेशनल में नहीं होगा, क्योंकि नेशनल जैसे मैंने कहा कि जो इंडिया की कंपनी है वो इंडिया में भी है और इंडिया के बाहर भी है और वहाँ से इनकम भी है, तो नहीं होगा। तो ऑप्शन बी एंड सी में डायरेक्टली गलत है। और पर कैपिटा इनकम का तो इससे रिलेशन नहीं है, तो GDP इज द राइट आंसर है। द GDP measures the value of goods and services produced within the country irrespective of ownership. Going further, the 18th question is how is net national product calculated from the gross national product? Very simple question. First, now here this question is a UPSC question. What it is saying is that all the option have GMP. Now here the elimination method which I told you that the GMP and GDP won't work here. You will have to use it. GMP में यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में ऑलरेडी डेप्रिसिएशन मिला हुआ, तो क्या डेप्रिसिएशन मिलाने की ज़रूरत है? नहीं है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। माइनस करने की ज़रूरत है, अभी देखते हैं। नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड इंक्लूड करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो नेशनल तो ऑलरेडी है। कितनी इनकम फ्रॉम एब्रॉड है उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो ये भी गलत हो गया। और यहाँ पर डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब नहीं, क्योंकि उसमें अभी आपका जो मार्केट प्राइस और फैक्टर इनकम के बेसिस पे जो वहाँ पर यूज़ होता है टैक्सेस डिडक्ट करने का, टैक्सेस डिडक्ट करने का। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज जो करेक्ट आंसर, जहाँ पर हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर रहे हैं, तो हमें नेट नेशनल प्रोडक्ट मिल रहा है। Hence, the NNP, the net national product, is calculated by subtracting depreciation from GNP, gross national product, to reflect the value of goods and services after accounting for capital, wear and tear. Understood? Very easy, clear. What does the value added method measure? Value added method, जैसा कि मैंने कहा था फर्स्ट ऑप्शन में कि मैं उसको बाद में बताऊंगा। And this is, and here it is. So total income earned by factors of production. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के थ्रू हो सकता है इसको नहीं, वो तो इनकम मेथड का पार्ट है। द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड नहीं, ये भी नहीं है। द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स एंड कंजम्पशन, टोटल गवर्नमेंट रेवेन्यू, ये भी इनकम मेथड है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए आप, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए आपने 1000 रुपये का आपकी एक बेकरी और आपने 1000 रुपये का एक केक बेचा है, जिसमें आपने 500 रुपये का आपने इंटरमीडिएट कंजप्शन किया। किस चीज़ का? ब्रेड का इंटरमीडिएट कंजप्शन किया, मतलब आपने उस चीज़ की प्रोडक्शन में, उस केक की प्रोडक्शन में 500 रुपये की ब्रेड का यूज़ किया, और बाकी जो आपको उसमें लेटेस्ट से कुछ और जो मटीरियल यूज़ हुआ 200-250 रुपये का जो भी हुआ, बाकी जो आपके ऊपर 200-250 रुपये की इनकम है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट जो आपका सेलिंग प्राइस था उस चीज़ का 1000 रुपये, प्लस आपने जिसमें भी इंटरमीडिएट उस चीज़ का डिफरेंस वैल्यू एडेड, आपने उसमें कितनी वैल्यू एड की। मान लीजिए आपने उस केक जैसे 1000 रुपये, और आपको जो इंटरमीडिएट कंजप्शन था जो आपने उसमें खुद ऐड किया वो 500 रुपये था, तो यहाँ पर डिफरेंस कितना होता है? 500 रुपये। तो आपने कितनी वैल्यू एड की उसमें? 500 रुपये। So the value added method calculates GDP by summing the value added at each stage of production. Now, अब वो ब्रेड जो बना है, वो ब्रेड भी किसी फ्लोर मिल से आया होगा, तो उस फ्लोर मिल ने भी कहीं से आटा लिया होगा, मिट्टी को फिर उसमें वीट लिया होगा, वीट से उसको आटा बनाया होगा, फिर उसका ब्रेड बनाया होगा। मान लीजिए उसमें 100 रुपये का अपने वीट लिया, फिर उसमें उसको 100 रुपये का ऐसा हो गया, उसको कन्वर्ट करने में उसको वीट फिर ब्रेड बनाया, तो जो उसका 200 रुपये आया वो भी आपका इसमें इंटरमीडिएट कंडीशन में इंक्लूड किया जाएगा। जितना आप इसको स्केल को बड़ा करते जाओगे तो वैल्यू विल कीप इंक्रीजिंग। सो क्या डेट इज इट?
for this lecture. Hope you understood everything. Don't forget to share this with your friends who actually need this thing. This will also help you in for class 12 and 11th NCRTs, because we have these things in NCRTs as well. Thank you, and we will bring you the next lecture very soon. Thank you very much. Jai Hind. God bless.